So, hi everyone, this is Vidhi, and today we'll simplify the topic remainder and factor theorem in the easiest possible way. इस टॉपिक को समझने के बाद we'll solve certain board questions, उसके वजह से आप लोग का confidence boost होगा. And total in remainder theorem we have 5 types of questions, और वो 5 questions करने के बाद you'll master the topic and you can score full out of full marks in board exams. So let's get started. Okay, so the very first type of question in the remainder theorem is type 1. So we need to find the remainder when your equation has been given to you and you need to divide it by certain divisor. Okay. So this is the equation which has been given to you, the polynomial which is given to you, and this is the divisor with which you need to divide it. So first of all, the very first thing which we need to do is we need to set the divisor to 0, and then we'll extract the value of x. और x का value निकालने के बाद we'll substitute the x value to the polynomial. Okay. So how will we know what is the remainder's formula? So remainder is equal to the polynomial which is given in the question. और x का वैल्यू निकालने के बाद हम लोग वो जो x का वैल्यू है उसको पॉलिनॉमियल में सब्सटीट्यूट कर देंगे, एंड जो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा. जैसे अब यहाँ पे हमने 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 किया है, तो x इज इक्वल टू -1/2 हो जाएगा. After receiving the value of x, we'll substitute the value of x into the polynomial. So after solving it, we get 8 1/4. This is the type 1 question which can be asked in your boards. Okay. So now next type 2 question is fine. So you will be given the polynomial, and उस polynomial में कोई एक variable होगा जो unknown हो, and the question will ask you to find that unknown variable, and उस polynomial का remainder भी दिया रहेगा. Okay, so as usual हमें formula पता है कि remainder is equal to polynomial होता है. Okay, so remainder is equal to polynomial. So we'll first of all write the polynomial, and then we'll substitute is equal to, we'll write it as 5 because 5 is the remainder here. And then after that, since the question says you that this is your divisor, x plus 3, so as usual we'll place the value of x plus 3 is equal to 0, and then we'll extract the value of x is equal to -3. After we get the value of x is equal to -3, हम ये value of जो x है उसे substitute कर देंगे main equation में. मेन इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करने के बाद विल सॉल्व इट फर्दर, एंड उसके बाद हमें a का वैल्यू मिल जाएगा. तो उससे हम लोग एक अननोन वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज टाइप 3 क्वेश्चन, जिसमें हमें एक पॉलिनॉमियल दिया रहेगा, बट उस पॉलिनॉमियल को अलग अलग डिवाइजर से डिवाइड करने के बाद अलग अलग रिमाइंडर मिलेगा. सो इन दैट केस हमें दो अननोन वेरिएबल्स का वैल्यू निकालना होगा. तो 2 अननोन वेरिएबल्स का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो we'll draw a line, and then in one side पहले हम लिखेंगे कि कौन सा रिमाइंडर हमें दिया हुआ है और वो रिमाइंडर किस डिवाइजर के लिए. जैसे यहाँ पे रिमाइंडर 7 डिवाइजर 2x प्लस 3 के लिए है, वैसे यहाँ पे सेकेंड रिमाइंडर 0 आपका नेक्स्ट डिवाइजर x प्लस 2 के लिए है. ओके, सो आफ्टर दैट एज यूजुअल we'll place 2x plus 3 is equal to 2x minus 3 is equal to 0. Okay. So after doing that, x is equal to, we'll receive the value of x as 3/2. So now, as usual, we'll place this equation. So we know that remainder is equal to polynomial. So remainder is basically 7, and the polynomial is this. So we'll place the value of x in the polynomial. Okay. So now, after solving this, we get the equation of in the terms of a and b. Now, after that, we'll label it as 1. Fine. Now, in the second part, what we are going to do is we'll take the other equation, which will be keeping it as 0, as the remainder here is 0. Now, x plus 2 is equal to 0, so x becomes equal to -2. We'll place this value of -2 in the x variable. तो place करने के बाद हमें वापस से सिंप्लीफाई करने के बाद एक इक्वेशन मिलेगा जो कि है 2a minus b is equal to 9. ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा. ओके, नाउ अगर जिसे साइमल्टेनियस इक्वेशन आता है वो इस फॉर्मेट में सॉल्व कर सकते हैं, और जिसे नहीं आता है वो दूसरे फॉर्मेट से सॉल्व कर सकते हैं. सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट मेथड दैट इज यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस. ओके, सो इसमें हम क्या करेंगे, इस ये जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हमने लिख दिया है, और ये जो सेकंड इक्वेशन है वो हमने लिख दिया है. अब यहाँ पे जो कॉन्ट्राडिक्टरी साइंस है, जैसे यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, सो हमने इनका कोफिशिएंट्स जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया है इन द ऑपोजिट एंड्स. ये 1 जो है वो यहाँ लिख दिया है, एंड ये 2 मैंने यहाँ लिख दिया है. नाउ we'll multiply this value with every individual term. So यहाँ पे हमने multiply करने के बाद हमें ये equations मिला है. क्योंकि हमारा 2b जो है दोनों में common है और दोनों में opposite signs है, so we'll cancel both of them. और उसके बाद हमें मिलेगा 7a is equal to 21.
सो उसके बाद विल गेट a इज इक्वल टू 3। अब हमें जो दो इक्वेशन दिया हुआ था उन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में हम a का वैल्यू प्लेस कर देंगे जिससे हमें b का वैल्यू भी एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। नाउ द अदर मेथड इंक्लूड Now the second equation has this part. So we can get the value of b. तो हमें b का वैल्यू कैसे मिलेगा 2a minus 9. So this becomes the third equation. We'll place the value of 3 that is b into the equation 1. That is हम 3a plus यहाँ पे जो पहला इक्वेशन थे ये था 3a plus 2b is equal to 3. तो हमने क्या किया जो b का वैल्यू है इसे यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया। तो यहाँ पे हमने लिखा है 3a plus 2 2a minus 9 जो ये वैल्यू है जो हमें यहाँ से मिला है वो हमने यहाँ डाल दिया इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करने के बाद हमें a का वैल्यू 3 मिल गया। एज यूजुअल क्योंकि हमें a का वैल्यू 3 मिल गया इसी वजह से हमने इसी को हमने पहले वाले इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दिया एंड देन वी गेट द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू -3। So this is the type 2 question which you can expect in type 3 question which you can expect in your boards exam. That is to find the value of an unknown variable. Now the second last type of the question is what should be added or subtracted in a particular equation. हमें क्या चीज ऐड करना चाहिए या क्या चीज सब्ट्रैक्ट करना चाहिए एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में या एक पर्टिकुलर इक्वेशन में जिससे हमें जो रिमाइंडर है वो मिल सके। ओके सो अगर द क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि हमें कुछ ऐड करना है पॉलिनोमियल में लाइक द क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी एडेड इन दैट केस विल जस्ट इंक्लूड प्लस के इन आवर इक्वेशन। बट अगर हमारा क्वेश्चन कहता है कि व्हाट शुड बी रिमूव्ड or what should be subtracted. So in that case, we'll use -t. Now, the very first thing which we'll do is, as usual, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है remainder is equal to f of x. So मैंने लिखा है remainder is equal to f of x. अब यहाँ पे f of x तो हमारा ये है तो हमने यही चीज प्लेस कर दिया है remainder is equal to f of x. Now, the question says what should be subtracted from this polynomial so that on dividing it by this, which is the divisor, the remainder is n. So हमें remainder दिया हुआ है हमें डिवाइस किया है as usual मैंने कहा है जब भी डिवाइजर दिया रहेगा we'll equate it with 0 so we get x is equal to 2. Now we'll place the value of x as 2 into the equation so we get remainder as 10. We'll place it here, we'll place the value of x as 2. Okay, so since the question says that what should be subtracted, so the very important thing to note here is since the question says that what should be subtracted, so we have applied -a here, which is a very important thing to note down. So we have kept here -a. Okay. Now we'll place the value of x in the given equation. We have the remainder given to us. The second thing which we'll do is we'll calculate the value of k which is given to us. After receiving the value of k, which is after solving this equation, so we'll solve this equation and we'll obtain the values of k. Now k is 8, so this value should be subtracted from the given equation in order to obtain the remainder as 8. Okay, so this is the fourth type of question. Okay, so let's take another example जिसमें हमने कुछ ऐड किया है जैसे what should be added to this. Okay, so हमें पॉलिनोमियल दे चुका है कि ये पॉलिनोमियल है और हमें इसमें ऐसा क्या ऐड करना चाहिए जिसके वजह से जो हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 8 आए। ओके, सो एज यूजुअल वी नो दैट अगर ऐड कॉन्सेप्ट बोल रहा है क्वेश्चन में तो वी जस्ट नीड टू ऐड प्लस के हियर। सो वी हैव एडेड प्लस के इनटू द पॉलिनोमियल। तो हमने लिखा है रिमाइंडर इज इक्वल टू दिस पॉलिनोमियल प्लस के। नाउ अब हमने क्या करना है तो रिमाइंडर इज 8, सो वी हैव प्लेस्ड द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर एज 8। मैंने ये पॉलिनोमियल लिख दिया है एंड देन वी हैव प्लेस्ड प्लस के। ओके, सो एज यूजुअल ये हमारा डिवाइसर दिया हुआ है हमें इसको इक्वेट करना है विद 0। नाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ x एज 3। अब इस वैल्यू ऑफ x को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे जिसकी वजह से हमें यहाँ पे सॉल्व करने के बाद ये चीज मिलेगा एंड क्योंकि हमें k का वैल्यू निकालना है सो विल प्लेस ऑल दीज थिंग्स that side and so we'll obtain the value of k as -46. So k को हमें जो k का वैल्यू मिला है उसको ऐड हम करेंगे इस इक्वेशन में तब जाके हमें रिमाइंडर जो है वो 8 मिले। Is it fine till here? Okay. Now next is type 5 questions. So this is the last pattern of question which you can expect in remainder theorem. Okay, so we'll be given two polynomials and the question says कि हमारा जो दोनों पॉलिनोमियल है वो सेम रिमाइंडर शो कर रहा है। सेम रिमाइंडर एज एन मान लीजिए किसी का रिमाइंडर 0 है तो वही दूसरा पॉलिनोमियल उसका भी रिमाइंडर 0 है। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट पॉलिनोमियल हैज रिमाइंडर 7, द सेकंड पॉलिनोमियल आल्सो हैज रिमाइंडर 7। सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस, ओके सो विल गो थ्रू द क्वेश्चन। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a। हमें a का वैल्यू निकालना है जिसमें हमें 2 पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉलिनोमियल इज दिस
and second polynomial is this. And the very important key point which is to be noted here is that it gives you the same remainder. क्योंकि ये सेम रिमाइंडर दे रहा है, इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा. So very important thing to note down. Okay, so this is the 4 important part here. Okay, so ये जो चीज है हमने इससे डिवाइड कर दिया है विद x plus 3. एज यूजुअल जब हमें डिवाइजर दिया होगा तो हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि हम उसको 0 से इक्वेट करें. सो विल गेट द वैल्यू ऑफ x. एक बार x का वैल्यू निकलने के बाद हम क्या करेंगे एज यूजुअल. ना हमें पता है कि रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉलिनोमियल है, इस वजह से हमने R1 और R2 को कॉन्सेप्ट लिया है. फर्स्ट R1 कैलकुलेट करेंगे इस इक्वेशन से. तो इस इक्वेशन में हम जो x का वैल्यू है उसे सब्सटीट्यूट कर देंगे. सब्सटीट्यूट करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिला है. सेम गोज विद अदर पॉलिनोमियल. उसमें भी हमने R2 कैलकुलेट किया है, तो उसमें हमने क्या किया है, जो x का वैल्यू है वो हमने सब्सटीट्यूट कर दिया यहाँ पे, एंड देन वी गेट दिस इक्वेशन. ना क्योंकि दोनों बोल रहा है कि दोनों का रिमाइंडर सेम है, तो यहाँ रिमाइंडर सेम है, एज इन दिस इज द रिमाइंडर ऑफ द फर्स्ट पॉलिनोमियल एंड दिस इज द रिमाइंडर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल. So we'll equate this. So this becomes a very important part here. We have taken R1 is equal to R2. जिसमें R1 जो है R2 इक्वल है, क्योंकि ये दोनों अल्टीमेटली क्या है, रिमाइंडर्स. तो ना अब क्योंकि हमें ये सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, R1 का वैल्यू जो है, जिसका वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे, तो हमने R1 का वैल्यू यहाँ से ग्रैब कर लिया है एंड इसे यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया है. एंड सेकेंड थिंग, इसका R2 का वैल्यू लेकर के हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया. ना कम्स द मेन थिंग. अब हमें सॉल्व कैसे करना है, तो हमें जो वैल्यू निकालना है, जैसे a का वैल्यू हमें निकालना है, तो वो दोनों हम एक साइड ले आएंगे, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड. सो वी हैव बॉट दिस a टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज -27a minus a, which is -28a, एंड जो रिमेनिंग नंबर्स है उसे हमने यहाँ लिया. उसके बाद विल इक्वेट दिस एंड विल गेट दिस फॉर्म. ना क्योंकि हमें a का वैल्यू निकालना है, सो विल डिवाइड इट एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ a. सो a जो है वही वैल्यू होना चाहिए a का वैल्यू यहाँ पे 3 निकला है, सो a का वैल्यू 3 होने पे ही दोनों का रिमाइंडर जो है वो इक्वल आएगा, वरना वो इक्वल नहीं आ पाएगा. उसके अलावा सो नाउ विल स्टार्ट विद द फैक्टर थ्योरम. सो फैक्टर थ्योरम हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा है. ओके, सो इसमें सिर्फ एक कीवर्ड पे फोकस करना है, जिसमें क्वेश्चन, जहां भी ऐसा क्वेश्चन होगा जहां पे x माइनस a इज अ फैक्टर, फैक्टर इज द कीवर्ड विच इज यूज्ड हियर. जहां भी फैक्टर एज अ कीवर्ड यूज किया जाएगा वही हमें फैक्टर थ्योरम लगाना है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां पे भी फैक्टर कीवर्ड यूज किया जाएगा उसका रिमाइंडर हमेशा 0 ही रहेगा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर. जहां भी फैक्टर आप लोगों को मिले वहां सीधा रिमाइंडर को 0 कर देना. ओके, सो नाउ लेट्स गो टू द टाइप 1 क्वेश्चन. सो टाइप 1 में हमें क्या करना है, अगर हमें कोई अननोन वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे. ओके, सो हमें एक पॉलिनोमियल दे दिया है जिसमें हमें एक अननोन वेरिएबल का वैल्यू निकालना है. तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, सो द क्वेश्चन इज इफ x minus 2 which is as usual I told you whenever this is given, so जब भी ये दिया रहेगा x minus 2, so equated with 0, तो हमें x का वैल्यू जो है वो 2 मिल जाएगा. ओके, ना हमें क्वेश्चन में वेरी इंपॉर्टेंट की वर्ड फैक्टर दिया गया है. फैक्टर मतलब ये तुरंत से क्लिक कर जाना चाहिए दिमाग में कि इसका रिमाइंडर 0 होगा, इसका रिमाइंडर 0 होगा. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, कि जब भी कोई क्वेश्चन में दिया है कि ये तुम्हारा डिवाइजर फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, तो इसका मतलब सीधा एक ही समझना है कि ये इसका जो रिमाइंडर है वो 0 है. Now remainder is 0. अब हमें ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है. Now we know that remainder is equal to of x, which means now apply this to this one, that is remainder is 0. Okay, and f of x is basically the polynomial which the question states. ठीक है, अब हमें x का वैल्यू तो हमने निकाल लिया है, हम सब्सटीट्यूट करेंगे ये x का वैल्यू अपने इक्वेशन में और फिर सॉल्व करेंगे. उसके बाद हमें अननोन वैल्यू का, वेरिएबल का वैल्यू पता चल जाएगा. ओके, सो दिस इज द टाइप 1 क्वेश्चन विच यू कैन एक्सपेक्ट इन फैक्टर थ्योरम, जिसमें हमें एक अननोन वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, जो हमने रिमाइंडर थ्योरम में भी देखा था. ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, आई रिपीट दिस वंस अगेन. जब भी फैक्टर कीवर्ड यूज किया जाएगा उसका मतलब साफ है कि हमें रिमाइंडर जो है वो 0 बता रहा है क्वेश्चन. ओके, ना
नेक्स्ट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टू अननोन वेरिएबल। जब हमें दो अननोन वेरिएबल क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, एंड उन दो अननोन वेरिएबल का वैल्यू हमें निकालना है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, तो अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गिवन दैट दिस एंड दिस आर द फैक्टर्स अगेन। सो फैक्टर्स कीवर्ड देखते ही हमें दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि इसका रिमाइंडर जो है वो 0 हो जाएगा। ओके, ना इट इज अ फैक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। दोनों ही जो है वो इस इक्वेशन का फैक्टर है। ओके, ना एज यूजुअल पहले हम इक्वेट करेंगे विद 0। सो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -2। ओके, ना हम क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट है यहाँ पे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। नाउ अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू -2 पहले इस इक्वेशन में प्लेस कर दें। जैसे अब यहाँ पे एज आई टोल्ड यू कि रिमाइंडर का जो इक्वेशन होता है वो होता है एफ ऑफ एक्स। तो ये सेम चीज हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। दैट इज एफ ऑफ एक्स हमने यहाँ पे लिख दिया है इज इक्वल टू रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारा क्या है, एज यूजुअल आई टोल्ड यू वो 0 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे फैक्टर कीवर्ड यूज कर दिया गया है। ओके, ना अब हम x की जगह पे उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड देन एक इक्वेशन निकालेंगे। ओके, ना नेक्स्ट है अगेन द सेम थिंग। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, एंड देन इसको भी हम रिमाइंडर 0 लेंगे क्योंकि दोनों फैक्टर्स है इस पर्टिकुलर इक्वेशन के, तो इसीलिए दोनों का जो रिमाइंडर होगा वो 0 हो जाएगा। ओके, सो ये इक्वेट करने के बाद ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आएगा। नाउ we'll equate it as usual. there are two methods. पहला मेथड हमारा साइमल्टेनियस मेथड है। साइमल्टेनियस मेथड, ठीक है, तो साइमल्टेनियस मेथड में क्या होगा, एज यूजुअल यहाँ पे हम देख रहे हैं बी और बी दोनों का ऑपोजिट साइंस है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो विल गेट 5a इज इक्वल टू -35। सो a बिकम्स इक्वल टू -7। सेम अब हम इन दोनों इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन में हम a का वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। तो प्लेस करने के बाद वी गेट द वैल्यू ऑफ b। ठीक है, सो अदर मेथड बिकम्स, the other method is, now we can extract the value of b from first equation. So from equation 1 we get, okay, so we'll get b is equal to 2a plus 8. Okay, so this becomes equation 3. So substitute equation 3 to equation 2. Okay, अब हम सब्सटीट्यूट करेंगे। सो 3a प्लस b इज इक्वल टू -27 एंड देन 3a प्लस, अब हम ये b का वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, दैट इज 2a प्लस 8 इज इक्वल टू -27। so this becomes equal to 5 and this becomes equal to -27 minus 8 which is equal to -35. so a becomes equal to -35 by 5 which is equal to -7। एंड एज यूजुअल ए का वैल्यू निकलने के बाद हम इसी मेथड में जाएंगे एंड बी का वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर देंगे। सो दीज आर द टू मेथड्स जिसके थ्रू हम ए और बी का वैल्यूज निकाल सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द टाइप 3 क्वेश्चन विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड जनरली स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज करते हैं। सो देयर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास 3 मेजर इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है। ये 3 स्टेप्स फॉलो करने के बाद ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, so let's start. So the type 3 question says you need to factorize the polynomial. तो हमें polynomial दिया रहेगा and हमें factor दिया रहेगा as usual. But the question says हम लोग को factorize करना है। तो जब ये question हमें बोल रहा है कि factorize करना है, which means हमें division method ही use करना है. So the question says factorize them, which means the question is saying you to use the division method. Okay. Now अब हम लोग क्या करेंगे, so this is basically your x minus 2 which is your divisor. So again हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि it is a factor of this particular equation. ये इसका फैक्टर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये बॉक्स बनाएंगे एज ओके, एंड देन जो हमारा पॉलिनॉमियल है उसको हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे एंड x माइनस 2 जो है, जो हमारा डिवाइजर है, वो हम इसे बाहर प्लेस कर देंगे। ओके, ना वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, देयर इज अ शॉर्ट ट्रिक। तो हम पॉलिनॉमियल का फर्स्ट जो आपका नंबर है, जो टर्म है, ठीक है, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे विद साइन। अब जैसे यहाँ पे 3x² के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके आगे प्लस का साइन है, सो हम लोग यहाँ पे 3x² एक्सट्रैक्ट करेंगे और प्लस भी एक्सट्रैक्ट करेंगे। सेम चीज हम लोग करेंगे इस वाले के साथ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे x के आगे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, एंड
यहाँ पे कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये प्लस। सो हम लोग यहाँ पे +1 एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब हम ये +1 को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिए। अब हम क्या करेंगे, पॉलिनॉमियल का जो हमारा वैल्यू है, ठीक है, उसको उसको x-2 का जो टर्म हमें मिला है फर्स्ट टर्म, ओके, सो उससे डिवाइड देंगे। सो हमारा x और x कैंसिल हो जाएगा, तो हम बच जाएंगे विद 3x, ओके, एंड 3 के आगे प्लस का साइन, ठीक है। अब ये जो 3x है वो हम क्या करेंगे, उसको प्लेस करेंगे एट द टॉप, ओके। अब जो हमें वैल्यू मिला है, जो भी वैल्यू हमें मिला है, वो हम मल्टीप्लाई करेंगे विद द डिवाइसर। सो दिस इज बेसिकली योर डिवाइसर, ओके। सो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ऑब्टेन्ड वैल्यू है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे विद द डिवाइसर। ऑब्टेन्ड वैल्यू हमारा 3x है और डिवाइसर हमारा ये जो क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये वैल्यू मिलता है। सो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, ओके। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ पे नोट करना है कि जो भी वैल्यू हमारा सेम है, जैसे यहाँ पे 3x² सेम है, सो हमेशा दोनों, या तो दोनों पॉजिटिव रहेगा या दोनों नेगेटिव। तो इन दैट केस क्या होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, इन दैट केस हम लोग साइन चेंज करेंगे। और क्योंकि हम इसका साइन चेंज कर रहे हैं, इसको हम यहाँ पॉजिटिव है तो इसकी जस्ट ऑपोजिट वाला साइन यहाँ हम लोग नेगेटिव डाल देंगे। तो ये हम करेंगे एटलीस्ट, जैसे हम यहाँ पे 2 टर्म्स ले रहे हैं एक साथ में, तो यहाँ पे हम माइनस की जगह प्लस डाल देंगे, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने क्या किया है, हमने जो वैल्यूज निकाले हैं यहाँ पे, उसको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ओके। एंड देन फाइनली क्या करेंगे, जो हमारा सेम कॉमन टर्म है उसका साइन देखेंगे। अगर दोनों का साइन जो है वो सेम रहेगा तो इन दैट केस हम उसका साइन ऑपोजिट कर देंगे। अगर यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ माइनस कर देंगे। एंड सेम गोज विद द नेक्स्ट टर्म ऑल्सो, यहाँ पे नेगेटिव है तो हम यहाँ पे पॉजिटिव कर देंगे, ओके। Now, so this gets cancelled, okay, and now we'll be left with +1x-2। अब यहाँ हम क्या करेंगे, +1x, मैंने वही सेम चीज कहा। अब हम, ये हमारा पॉलिनॉमियल है, तो इस पॉलिनॉमियल का फर्स्ट टर्म जो है, जो कि है हमारा +1x, ओके, ये एक्सट्रैक्ट कर देंगे, डिवाइड करेंगे इस वाले टर्म से। सो ये जो टर्म है इसका फर्स्ट टर्म क्या है, +1 + 1x, ये दोनों ही कैंसिल हो जा रहे हैं, तो हमारा वैल्यू क्या बचेगा, 1। तो ये देखिए हमारा पॉलिनॉमियल है +x-2, यहाँ से जो आ रहा है इक्वेट करने के बाद, एंड फिर हम डिवाइड देंगे किससे, विल डिवाइडेड बाय x-2। सो x-2 के आगे कौन सा मतलब टर्म है, पहला टर्म, सो दैट इज 1x। ये दोनों को डिवाइड देने के बाद विल गेट इट एज +1, ओके। नाउ ये दोनों कैंसिल हो गया, वी गेट +1, ओके। ना +1 देने के बाद अगेन ये चीज को, जो हमारा ऑब्टेन्ड वैल्यू है, ठीक है, वो हम क्या करेंगे, वापस से उसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे, जो रेड आर्को से दिख रहा है, ओके। ना अगेन द सेम थिंग, ये जो हमारा ये डिवाइसर है x-2, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे विद +1, ओके। एंड देन क्या होगा, x-2 ही हो जाएगा, ओके। सो ये जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ओके। प्लेस करने के बाद अगेन सेम चीज, यहाँ पे भी 1 के आगे प्लस है और यहाँ भी 1 के आगे प्लस है, सो हम साइन चेंज कर देंगे, प्लस की जगह यहाँ माइनस डाल देंगे। एंड एज यूजुअल, क्योंकि हम यहाँ का साइन चेंज कर रहे हैं फर्स्ट टर्म का, तो सेकेंड टर्म का भी चेंज करना पड़ेगा। हम यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा देंगे। सो एज यूजुअल दिस गेट्स कैंसल्ड एंड वी आर लेफ्ट विद 0। तो इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे हमें देखना है, हमें फैक्टराइज करना है। सो फैक्टराइज करने के लिए ऑलवेज रिमेंबर दिस वन फॉर्मूला, दैट इज योर डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइसर इनटू कोशेंट, ओके। सो हमारे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में जो डिवाइजर है वो है x-2 और कोशेंट है 3x+1 जो हमने कैलकुलेट किया है। ये पूरा कंप्लीट लिखने के बाद हमें 4 मार्क्स मिल जाएंगे, ओके। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ, लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज, जब हमारा वैल्यू जो है, जो हमारा डिवाइसर है वो नहीं दिया हुआ है, बट स्टिल द क्वेश्चन सेज यू टू फैक्टराइज। जब हमारा x-a जो कि हम बोलते हैं डिवाइस है, वो हमें नहीं दिया हुआ है, तो इन दैट केस क्वेश्चन हमें बोलेगा कि हम लोग को फैक्टराइज करना है। तो इन दैट केस हम फैक्टराइज कैसे करेंगे, सो इन दैट केस अगेन इसमें 3 स्टेप्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है, हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। सो वी डोंट नो कि कौन सा नंबर जो है वो सूटेबल होगा।
एंड हिट एंड ट्रायल मेथड तब तक यूज करेंगे जब तक हमें जो रिमाइंडर है वो जीरो ना मिल जाए। जब हम पॉलिनॉमियल को यूज करने के बाद जो वैल्यू आता है उसमें एक्स का वैल्यू डालने के बाद जो वैल्यू आता है वो जीरो जब तक नहीं होगा तब तक हमें कंटिन्यू करते ही रहना पड़ेगा। ओके, सो नाउ अब ये जो एक्स का वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो वो चीज फिगर आउट करना हमारा काम है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोसेस, दैट इज हमने क्या किया, ये इक्वेशन है तो हमने पहला x इज इक्वल टू जीरो लिया। सो x इज इक्वल टू जीरो लेने के बाद जब हमने जीरो सब्सटीट्यूट किया x की जगह पे तो हमारा वैल्यू जो है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, विच मीन्स ये हम वैल्यू डिस्कार्ड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट, अब मैंने कहा कि क्योंकि हम लोग x का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, तो जीरो का काम हो गया है नेगेटिव। ओके, सो व्हेन वी टेक नेगेटिव, ओके, सो -1 लेने के बाद जब हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें इसका रिमाइंडर जीरो मिलता है। तो रिमाइंडर जीरो मिल गया, इसका मतलब हमें हमारा आंसर ऑलमोस्ट मिल गया है, 50% हमें मिल गया है, 50% और ओके। तो ये जो आंसर मिला है हमें ये ही सेलेक्ट करना है फॉर सॉल्विंग इट फर्दर। ओके, नाउ द मेन पार्ट कम्स हियर एज जब हम x इज इक्वल टू -1 लिए तब भी हमारा आंसर जीरो आया है एंड x इज इक्वल टू 1 लिए तब भी हमारा आंसर जीरो आया है। ओके, सो अब क्वेश्चन ये अराइज होगा कि इन दोनों में से कौन सा x का वैल्यू हम कंसिडर करें। ओके, सो इन दैट केस जो x का वैल्यू हमें कंसिडर करना है वो हम कोई भी वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम x-1 ही कंसिडर करेंगे या x1 ही कंसिडर करेंगे, हम दोनों में से कोई भी वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 कंसिडर किया है क्योंकि आपके बुक में x इज इक्वल टू +1 कंसिडर किया है। सो +1 अगर आपको देखना है तो आप अपने बुक को रेफर कर सकते हैं। ओके, तो आप टेकेंगे x इज इक्वल टू -1। ओके, सो x इज इक्वल टू -1 में हम क्या करेंगे, इस -1 को इसके उस तरफ लेंगे, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड। ओके, सो x + 1 इज इक्वल टू 0। नाउ ये जो है ये हमारा डिवाइजर बन जाएगा। ओके, एंड एज यूजुअल ये मेरा पॉलिनॉमियल जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, हाउ विल यू सॉल्व दिस, सो ये सॉल्व करने का टेक्निक मैंने टाइप 4 में मैंने बता दिया है। ओके, ना अभी के बाद हमें ये वैल्यू मिला है। सो एज आई टोल्ड यू कि हमारा जो डिविडेंड होता है, ओके, सो दिस इज नथिंग बट दिस इज योर डिविडेंड। ओके, सो डिविडेंड बिकम्स इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट। ओके, सो डिवाइजर हमारा ये है और कोशेंट हमारा ये है। ओके, सो अगर आप इतना ही करके छोड़ देंगे यहाँ, सो यू वोंट गेट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। ओके, इसको और फर्दर कंप्लीट करना है, आई टेल यू व्हाई। ओके, तो यहाँ डिवाइजर का वैल्यू x + 1 हमने डाला है, कोशेंट का वैल्यू ये डाला है। ओके, नाउ दिस बिकम्स योर स्टेप 3। स्टेप 3 में हमें हम ये करना चाहते हैं कि अगर हमें कोई इक्वेशन ऐसा मिला है जो कि फर्दर फैक्टराइज हो सकता है। ओके, सो अगर हमें कोई ऐसा इक्वेशन मिला है जो फर्दर फैक्टराइज हो सकता है, उसको हम फर्दर सिंपलेस्ट टर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, सो इन दैट केस हम पहले वो करेंगे। ओके, सो x + 1 को वी कैन नॉट सिंप्लीफाई फर्दर, बट ये जो इक्वेशन है ये हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग मिडिल टर्म टेक्निक। ओके, सो मिडिल टर्म में हम क्या करते हैं, ये जो 2 है, ठीक है, जो x² के आगे है, ठीक है, एंड ये 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2 इंटू 1 इज 2। सो 2 को हम कैसे तोड़ सकते हैं जिससे हमारा आंसर -1 आए। ओके, सो 2 और 1। ओके, सो अगर मेरा 2 का साइन नेगेटिव हुआ और 1 का साइन पॉजिटिव हुआ तो फिर ये पॉसिबल हो सकता है। सो इन दैट केस 2x² एंड देन -2x। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट जो वैल्यू बड़ा है वही वैल्यू के पास वो साइन होना चाहिए जो एक्चुअल में है। ओके, +x -2। ओके, एंड देन हम कॉमन निकालेंगे इन दोनों से, एंड देन इन दोनों से कॉमन निकाल लेंगे एंड देन हमें ये वैल्यू मिलेगा, एंड देन विल पेयर दिस एंड दिस टुगेदर एंड दिस एंड दिस टुगेदर। ओके, fine. So this is how we complete type 4 question for your factor theorem. Okay, so let's start solving our board's question. Okay, so now the first question is what should be subtracted, the first keyword. ओके, सो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जब भी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं उसमें जो भी चीज हमें इंपॉर्टेंट लग रहा है पहले हम वो अंडरलाइन कर लेंगे। ओके, सो फर्स्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पॉलिनॉमियल, ओके, which has a result in expression this, okay, and has a factor of this. Okay, so what did we understand from this? So क्या चीज हमें सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, so ये देखने के बाद हमें क्लिक करना चाहिए कि हमें ये यूज करना है। ओके, पॉलिनॉमियल हमें दिया हुआ है, ओके, फैक्टर हमें दिया हुआ है, विच मीन्स
we need to equate it with 0. So 2x plus 1 is equal to 0. So x becomes equal to minus 1 by 2. Okay. Now, सबसे important keyword यहाँ पे है factor. Factor is the keyword which is given, which means my remainder becomes equal to 0. Very important. Okay. Now, we know that f of x is equal to remainder. Okay. Now, f of x is nothing but 16x cubed minus 8x square plus 4x plus 7. Okay. And then हमें subtract करना है, so we'll take minus k is equal to, okay, we'll take it as 0 क्योंकि remainder हमारा 0 दिया हुआ है. Okay. Now, we'll place the value of x 1 by minus 1 by 2 whole cube minus 8 minus 1 by 2 whole square plus 4 minus 1 by 2 minus plus 7, okay, minus k is equal to 0. Okay. Now, so this becomes equal to 16 into minus 1 by 8 minus 8 into 1 by 4 plus minus minus 4 into 1 by 2 plus 7 minus k is equal to 0. Okay. So this gets cancelled, so you get minus 2. This gets cancelled, you get minus 2. This gets cancelled, you get minus 2 plus 7 plus, okay, minus k is equal to 0. So now this becomes equal to minus 6 plus 7 minus k is equal to 0, which means 1 minus k is equal to 0, which means my k should become equal to 0. So this becomes your answer. इसका मतलब ये कि k का वैल्यू अगर 1 होगा तब जाकर के हमारा रिमाइंडर 0 होगा. Okay, fine. Okay, so this is the first PYQ, that is 2017 PYQ, okay, which was asked. Now, next PYQ is, so the next PYQ is x plus 2 and x plus 3 again is a factor of this. We need to find the values of a and b. Again, very important to remember. First thing which we know is we divide the three. Okay, that is, first is x plus 2 is equal to 0. So here x becomes equal to minus 2. First one. Okay. Next is x plus 3 is equal to 0, which means x is equal to minus 3. Okay, this is the second one. Okay. Now, the very important keyword here is factor, which means my remainder for both becomes equal to 0. See, these types of questions are asked consecutively in every year. Okay. So in every year, these types of questions are asked, and you need to have a good command in this types of question, that is factors question. Okay, where my remainder becomes equal to 0. Okay, fine. Now, next thing is, what can we do is, we'll place again the same thing, f of x is equal to remainder as usual. Okay, so we have x cube plus ax plus b is equal to, what is the remainder here? 0. Okay, now we'll place the value of x, so minus 2 whole cube plus 8 minus this plus b is equal to 0. So it becomes equal to minus 8 minus 2a plus b is equal to 0. We'll take it to the other side, that is 2a minus b is equal to minus. This is the first equation. Fine. Now, we'll go for the second equation, that is, okay. So the second equation tells you that you have x is equal to minus 3. So x is equal to minus 3, we'll substitute into the equation. So x cube plus ax plus b is equal to 0. So minus 3 whole cube plus a minus 3 plus b is equal to 0. So we get it as minus 27 minus 3a plus b is equal to 0. Right? So we'll again take it to the other side, that is 3a minus b is equal to minus 27. Okay? So this becomes the second equation. Now, as usual, अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो there are two methods. So I'll use only simultaneous method. Okay, fine. So we'll take it as 2a minus b is equal to minus 8 and 3a minus b is equal to minus 20. Now comes the main catch. ये जो common terms है b और b, that's fine. But दोनों के पास same signs है, तो we'll say change the sign of it. So when we change the sign of it, we need to change the sign of the others also. So here we have plus, we get it as minus, and here we have minus, we get it as plus. Okay. So this gets cancelled, so we get it as minus 8 is equal to. So this, when you subtract 27 minus 8, you get it as 90. Okay. Got it? Now, so we get the value of p as minus 19. Okay.
Now, as usual, we'll substitute the value of a into either of the equations. Okay, so I'll substitute into the first equation. That is, we have 2a minus b is equal to minus 8. So 2 into minus 19 minus b is equal to minus 8. Okay, so this becomes equal to minus 38 minus b is equal to minus 8. Okay, so we'll do one thing. We'll take minus b here. We'll take 38 there. Okay, so we get as minus b is equal to 30. Okay, and then gradually b becomes equal to minus half. Okay, so these are the two values of a. These are the values of a and b. After getting these values, you get 4 marks. So you can see how easy the questions are of both. So this is for 2018 question. Okay. Now solving our last question. Okay. That is use factor theorem factorize. Now, as I told you, so here again we highlight the keywords. First of all, we need to use the factor theorem since its question says factorize. Okay. And we have been given a polynomial. So when the question says factorize, okay, so the very first thing to click in our mind is very good. That is, this says you to use the division method. Okay. Okay. So now what we'll do is, as usual, so step one is hit and trial method. So we'll follow the step one. Okay. So step one says you to follow hit and trial method. Now, so we'll take it as first we'll take x is equal to 0. So x is equal to 0 means 6 0 whole cube plus 7 0 whole square plus 4 into 0 minus 12. Okay. So this is again 0 plus 0 plus 0 minus 12 is equal to minus 2, which is again not equal to 0. So we discard this option. Okay. Is it clear to you? Now, next is, as I told you, we can take the negative number also and a positive number. Okay. So I'll try it with x is equal to minus 1. So how will you do this? So 6 minus 1 whole plus 17 minus 1 whole square plus 4 minus 1 minus 12. Okay. Which becomes equal to minus 6 plus 17 minus 4 minus 12, which becomes equal to 17 minus 22, which is obviously we know this doesn't become equal to 0. So again, we'll discard this solution. Now again, I'll take the other one, that is x is equal to minus 2. Okay, so now let's check this. So 6 minus 2 whole cube. Okay, okay. So now we'll place 17, okay, minus 2 whole square plus 4 minus 2 minus 12. Okay. Now, how will you solve this? As usual, we'll simplify this. Okay. So, we know 6 into minus 8 plus 17 into minus 4 plus, this is minus 8 minus 2. Correct. So, now 6 into 8 is minus 48. Correct. Now, what is 17 into 4? So 17 into 4 is 68. So you have minus 68 minus 8 minus 12. Okay. Is it fine? So okay, this is plus 4. Okay. This should be plus. Is it clear here? Now, the next thing is we have 68 minus. We'll take minus as common. So you have 48 plus 12 plus 8. So we know that 48 plus 12 is 60. And 60 plus 8 is 68. So again we get it as 0. So which means this is equal to 0. So we will now accept this solution. Okay. So now since we have accepted the solution, we have the very important thing. It is 50% of our question is solved. That is, how will you take? Now this is the thing which we have to write. Okay. So we'll write it as 2. So we'll bring this to this side. So x plus 2 is equal to 0. Okay. So now this part, that is the highlighted part. Okay. So this becomes your divisor. Okay. So this becomes your divisor. Fine, clear? Clear? Now, as usual, very important technique is to divide it. Okay. So please understand it here. If you did not understand above, okay. So this is your division. Okay. You have 6x cubed plus 17x squared plus 4x minus 12. So we have here x plus 2. Now, the very first thing which we'll do is we'll extract the first item of the polynomial and first item of the divisor. Okay. So what will we do is
First thing is we'll take 6x cube and we'll divide it with x. We are doing so in order to get the term, in order to divide it with the x. Okay. So this becomes x and x gets cancelled. So we get it 6x squared. Okay. So now we'll place this 6x squared this side. Okay. So now we get it as 6x squared. Now this 6x squared should be multiplied, okay, with your divisor, that is x plus 2. Okay, so you get it as 6x cubed plus 12x square. Okay, so now we'll substitute this value, this particular value. Okay, we'll substitute this particular value here. Okay, now after substituting it, we get it as 6x cubed plus 12x square. Okay, now as I told you, the term which is same, that is 6x cube and 6x cubes are same, correct? So both have plus and plus sign. So we will change the sign of the bottom one, that is this one. So we'll become, it becomes equal to minus. Okay, so which means the opposite of the sign. Is it fine till here? Here also we have plus, so this becomes minus. Okay, now what will you do? We'll cancel this out. Okay, and this becomes equal to what? 5x square plus 4x, correct? Now, this comes here, correct? Okay, now, the next thing is, now this particular thing becomes a polynomial, so I'll extract this value again, okay? So now, what will I do is, for this question, okay, for this one, I will extract 5x square divided by, what is the divisor here? X. Again, so x and x gets cancelled, we get it as 5x, okay? Now this is again, so no symbol is there, which means we have plus symbol there, okay? So now we'll again place this particular thing, okay, into the next one, okay? Which means it becomes equal to plus 5x, okay? So we get it as 5x square, multiply it, okay? So we'll multiply this with x plus 2. So we get it as 5x square plus 10x, okay? Sure, plus 10x. So again, as usual, so we have plus and plus here, so we'll change the sign here minus, and since here we have plus, we'll again change it into minus. So whatever is the sign here, okay, we change it into the opposite sign of it. Okay. So now this gets cancelled, so we get it as 6x. Now which is biggest amongst both? So we have 10, which is big among both. Okay. So now this will retain the sign at the biggest term. Okay. Now we'll bring this term down, okay, which is minus 12. Again, as usual, we'll again extract the first term of the polynomial. Okay. So we'll extract the first term of the polynomial. Okay. So now this becomes equal to minus 6x by again the first term of the divisor. So x and x get cancelled, we get it as minus 6. Again, this minus 6 gets placed over this one here. Okay, so we do it as we have minus 6, so we place it as minus 6. Okay, now again into x plus 2, so which becomes equal to minus 6x minus 12. Now we'll place this value here, so we have minus 6x minus 12. Now this is negative, so we change it into positive. This is negative, we change it into positive. Cancel both the terms, so we get it as 0. Correct? Now, as usual, I told you your factorization has not been completed. Your question has not been completed. So we know that the polynomial 6x cubed plus 17x squared plus 4x minus 12. So this becomes equal to what? Very good. So this becomes equal to divisor into your quotient, correct? So this is your divisor and this is your quotient. Okay. So now divisor is nothing but your x plus 2, correct? And your quotient is nothing but 6x squared plus 5x minus 6. Okay. Now what will you do now is basically this won't be further reduced, so we'll again retain it as it is, x plus 2. Okay, now we need to check this, so we need to do middle term splitting here, so we'll again multiply 6 into 6. So 6 into 6 is nothing but 36, correct? So we need to equate 36 in such a manner or split 36 in such a manner that by adding or subtracting we should get plus 5, at least 5. Okay, now
So we'll divide it in this manner. So first 2 ones are 2 and 2 18s are 36, correct? Then 3, 12. So if you add or subtract 18 plus 2 is 20. Okay, if you add it, okay. And if you subtract it, you get it as 16, which is discarded, correct? Now again, same goes with 3 and 12. If you add it, you get it 15. But when you subtract it, you get it 9. We want 5, correct? So now we'll go for 4. So we have 4 and then we have 9. So see this one. So when you subtract both of them, you get it as 5, correct? So we'll take this value. That is, we have 6x squared. Now the one which is biggest amongst both, okay, will have the value positive, okay? So plus 9x minus 4x minus 6, okay? Done. Now, next is x plus 2 in bracket. So we'll retain the value. So we'll take the common one, okay? So 3x and then x plus 3 minus. So again, we'll take 2 common. So we have 2x. So since we have taken minus also common because both has minus there, so we have taken minus also common. So now we get the opposite sign of it, that is plus. Okay, so we get it as 3. Okay, clear? And here also we have 2x. Okay, clear? Done. Now again we'll group the following terms. The common term, that is 3x minus 2, and then you have 2x plus 3. So after writing this answer, you get your 4 marks completely. Okay. So now, the next question is this: use a factor theorem to show that x minus 2 is a factor of this. So this will be your homework question, and you can mark your answer there in the comment section, and the answer which is correct answer will be pinned. Okay. So that's all for today. Okay. So I've covered all the types of questions that come in your exam. Just practice these types of questions, and I guarantee you'll score about 100% marks in this particular topic. Practice well. If you have any doubts, you can write it into the comment section below. And that's all. Okay. Thank you.